Welcome dear friends, in this video we will solve 2022 paper of Assistant Director Airport Security Force. So let's start. Question 1 is, the debate was dash the following week. The correct option here is adjourned to. Next is, which of the following spelling is correct? So the correct option here is option A, aggrandize. Next is, when it comes to backstabbing, a quill dash be dash then a dagger. So the correct option here is option D, none of the above. क्योंकि क्विल के बाद कैन आएगा और बी के बाद डेडलियर आएगा. अ क्विल कैन बी डेडलियर देन अ डेगर. नेक्स्ट इज डैश यू एवर बीन टू एम्स्टरडैम. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, हैव. Next is, the investigative journalist is not willing to reveal the identity of her dash. The correct option is option C, informant. Next is, the synonym of connoisseur is. The correct option is option C, love of art. Next is, the synonym of gruesome is. Gruesome के माने है भयानक. So the correct option is option B, frightful. Next is, the synonym of bemoan is. Bemoan के माने है मातम. So the correct option here is option C, lament. Next is, the synonym of abandon is. Abandon के माने है तर्क करना. So the correct option here is option A, discontinue. Next is, the synonym of wrath is. wrath के माने है गुस्सा. So the correct option here is option C, anger. Next is, the antonym of military is. Military means askari. So the correct option here is option B, civil. Next is, the antonym of subversion is. Subversion के माने है बगावत. So the correct option here is option B, compliance. Next is, the antonym of provoke is. Provoke के माने है उकसाना. So the correct option here is option A, soothe. Next is, the antonym of categorical is. Categorical के माने है साफ साफ या दो टोक. So the correct option here is option C, conditional. Next is, the antonym of dearth is. dearth के माने है कमी. So the correct option here is option C, abundance. Next is, I am glad dash your success. The correct preposition here is for. Option B is the correct option. Next is, the whole nation was dash the president. The correct preposition is behind. Next is, we trust dash one God. The correct preposition is in. Next is, Neha is traveling dash the school. The correct preposition is towards. Next is, as dash me, I will be happy dash land alone. The correct prepositions are for and to. From here onward, we will be solving mathematical portion. So question 21 is, square root of an unknown number is equal to 88 multiplied by 42 divided by 16. So let's see how it will be solved. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है वो x है. तो हमारे पास अंडर द रूट x हो जाएगा 88 मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइड बाई 16. हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं BDMAS. B से मतलब ब्रैकेट, D से मतलब डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इस रूल के तहत. तो ब्रैकेट है 88 मल्टीप्लाइड बाई 42, तो ये हो जाएगा 3696 डिवाइड बाई 16. फिर अकॉर्डिंग टू डेट रूल हमारे पास डिवीजन आता है. तो 3696 को डिवाइड करें 16 पे, तो अंडर द रूट x हमारे पास हो जाएगा 231. अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब हमें चाहिए x. तो x को फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट को पहले ख़त्म करेंगे. तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए लाजमी है कि हम इसको स्क्वायर बनाएंगे. तो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स अंडर द रूट x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 231 होल स्क्वायर. तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 53,361. So the correct option here is 53,361. Here it is the answer. Next is, the smallest number of 5 digits beginning with 3 and ending with 5 is.
इस तरह का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पहला और आखिरी डिजिट हमें मालूम है, दैट इज़ 3 एंड 5। बीच में जितने भी डिजिट्स हैं हमें चूँकि स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करना है, तो बीच के सारे डिजिट्स वो 0 हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी 30,005। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नंबर्स अप टू 100 आर डिविजिबल बाई 7। 100 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 7 पर डिविजिबल हो। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में जो a है दैट इज़ द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 इन द गिवन रेंज, और गिवन नंबर रेंज में फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 हमारे पास आता है 7, और लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 जो है दैट इज़ an, और an हमारे पास हो जाएगा 98। फिर इसमें d है, d असल में डिफरेंस है बिटवीन टू मल्टीपल्स, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स जो होते हैं, और हमारे पास लेट्स सपोज 7 14, तो 14 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 7, सो दैट इज 7। फिर n जो हमारे पास आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 अप टू 100। तो n चूँकि हमने फाइंड करना है तो हम बाकी वैल्यूज़ जो है वो इस फार्मूले में पुट करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी में। सो दैट विल बी 98 विल बी इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 14। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज गिवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है जो कि दिए गए हैं, उसमें पहला और तीसरे नंबर के दरमियान जो डिफरेंस है, मतलब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तीसरे नंबर से पहला नंबर, तो वो डिफरेंस कितना आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन के लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है दैट इज़ x, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर मतलब उसका इमीडिएट नेक्स्ट नंबर हो जाएगा दैट विल बी x प्लस 1, और थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा x प्लस 2। अब द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर विल बी एज अंडर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने तीसरे नंबर से पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो तीसरे नंबर हमने एज्यूम किया है कि दैट इज़ x प्लस 2, और जो पहला नंबर हमने एज्यूम किया है दैट इज़ x, सो x प्लस 2 माइनस x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा 2। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट इज व्हाट हैज़ टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 टू मेक द रेशो 5:6। अब हमारे पास एक रेशो है 3:5। अब 3 के साथ क्या ऐड किया जाए और 5 के साथ क्या ऐड किया जाए कि रेशो हमारे पास बन जाए 5:6। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। अब सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेशो को हम लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। हमें पता है कि 3:5 हम लिख सकते हैं 3/5 की फॉर्म में, और 5:6 को हम लिख सकते हैं 5/6 के फॉर्म में। अब हम इज्यूम करते हैं कि एक नंबर है x हमें मालूम नहीं है, लेकिन x एक नंबर है जो कि 3 और 5 के साथ ऐड हो जाए तो रेशो 5/6 बन जाएगी। तो इस लिहाज से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3 + 6 और 5 + 6 इज इक्वल टू 5/6। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास आएगा 7। तो 7 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि 3 और 5 के साथ अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास रेशो बन जाएगी 5/6। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट इज the ratio of ages of 2 students is 3:2. One is older than the other by 5 years. What is age of the younger student? अब क्वेश्चन ये है कि 2 स्टूडेंट्स है, उनके एजेस का अगर रेशो निकाला जाए तो रेशो बनती है 3:5। इनमें से जो ज़्यादा एज वाला या ओल्डर स्टूडेंट है तो वो 5 साल बड़ा है दूसरे से। तो अब इसमें से जो यंग एज वाला स्टूडेंट है, जो छोटा स्टूडेंट है, तो उसका एज कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो रेशो दी गई है 3:2, तो हम कंसिडर करते हैं कि जो बड़ा है उसका एज 3x है और जो छोटा है उसका एज 2x है, और कंडीशन हमें ऑलरेडी दी गई है कि जो छोटा है वो बड़े से 5 साल छोटा है। तो 3x माइनस 2x मतलब एक का एज अगर दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास एज बनता है 5। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 5। x हमारे पास आएगा 5। अब ऑलरेडी हमने कंसिडर किया है कि एज ऑफ यंगर स्टूडेंट हमारे पास है 2x, सोल्यूशन के स्टार्ट में हमने कंसिडर किया था।
तो अगर 2x है तो ऑलरेडी x हमारे पास 5 आ गया है, सो 2 × 5 = 10। इसका मतलब ये है कि जो यंगर है उसका एज 10 ईयर्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, 10 ईयर्स। नेक्स्ट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.25 एंड 0.04 इज। अब दो नंबर्स हैं 0.25 एंड 0.04, इसका हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि हम x को कंसिडर करते हैं कि ये मीन प्रोपोर्शनल है 0.25 का और 0.04 का। तो इस लिहाज से हमारे पास जो प्रोपोर्शन बन जाएगा दैट विल बी 0.25/x और फिर प्रोपोर्शन x रेशो 0.04। अब जब इस तरह का प्रोपोर्शन हमें दिया गया हो तो प्रोपोर्शन का एक कानून है और वो ये है कि प्रोपोर्शन के जो एक्सट्रीम्स है वो इसके मीन्स के बराबर होंगे जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम उस कानून को अप्लाई करते हैं, मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बराबर करते हैं इसके एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लिकेशन के। सो मीन्स हमारे पास है x और x, सो x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.04। तो हमारे पास हो जाएगा x² इज इक्वल टू 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 4/100। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें हम तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0.1। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, 0.1। नेक्स्ट इज द रेशो ऑफ A's and B's salary is 9:4. If A's salary is increased by 15%, then his total salary becomes rupees 5,175. What is the salary of B? अब दो बंदे हैं, उनका नाम है A और B। उनकी जो सैलरी की जो रेशो बनती है दैट इज़ 9:4। अब A की सैलरी अगर इंक्रीज़ हो जाती है 15% तो उसकी टोटल सैलरी बन जाती है 5,175। तो जो दिए गए इंफॉर्मेशन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, उससे अब हमने फाइंड करनी है कि B की सैलरी कितनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब सोल्यूशन के लिए हम पहले गिवन कंडीशंस को लेते हैं। गिवन कंडीशंस में ये है कि A की जो सैलरी अगर 15% इंक्रीज़ होती है तो दैट बिकम्स 5,175। इसका मतलब ये है कि A की 115% सैलरी बन जाती है 5,175। तो हम A की 100% सैलरी फाइंड करेंगे और 100% सैलरी हम इस तरह फाइंड करेंगे कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो सैलरी है और 115 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास A की ओरिजिनल सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट वो हो जाएगी 4,500। अब गिवन दैट द रेशो ऑफ A एंड B इज़ 9:5, ऑलरेडी हमें दिया गया है कि उनकी जो रेशो है वो 9:5 है और हम कंसिडर करेंगे कि द सैलरी ऑफ B x है इस वक्त। तो हम प्रोपोर्शन बनाएंगे दैट इज़ A/B प्रोपोर्शन 9:4। अब हमारे पास A की सैलरी हमने मालूम की है दैट इज़ 4,500। B की सैलरी को हमने एज्यूम किया है कि दैट इज़ x एंड दैट इज़ प्रोपोर्शन टू 9:4। अब प्रोपोर्शन का जो कानून है या जो भी रूल है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब हमारे पास जो मीन्स है इसमें दैट इज़ B एंड B को ऑलरेडी हमने x में एज्यूम किया है तो दैट इज़ x एंड 9 और हमारे पास जो एक्सट्रीम्स है दैट इज़ 4 एंड 4,500। तो इसको हम जो है ना 9 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4,500। तो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिलेंगी और x का वैल्यू हमें मिलेगी 2000। x इज इक्वल टू 2000। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन A, 2000। नेक्स्ट इज हाउ इज 1 और 2% एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फ्रैक्शन। अब 1 और 2% को हमने एक्सप्रेस करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन के लिए पहले हम लिखते हैं सिंपल 1 और 2%। अब परसेंट हमें पता है कि परसेंट बराबर होता है 1 और 100, तो परसेंट की जगह हम 1 और 100 लिखते हैं। तो ये 1 और 2% इज इक्वल टू 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 100 दैट विल बी इक्वल टू 1 और 200। अब 200 को अब 1 को हम डिवाइड करेंगे 200 पे। 1 को जब हम 200 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.005। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन A, 0.005। नेक्स्ट इज इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल एग्जामिनीज आर पास्ड
If the number of failures is 420, the total number of examinees is. एग्जामिनेशन में 65% ऑफ टोटल एग्जामिनीज जो है, जितने बंदों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें 65% पास हो चुके हैं, और जो फेल हो चुके हैं उनका हमें परसेंटेज नहीं मालूम, लेकिन उनके जो नंबर है दैट इज़ 420, मतलब 420 कैंडिडेट्स फेल हो चुके हैं। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने बंदे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। तो चलिए लेट्स सॉल्व इट। अब सोल्यूशन में हम देखते हैं कि गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा हमारे पास ये है कि टोटल पास्ट एग्जामिनीज जो है वो 65% है, तो इससे हम फेल का परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। टोटल फेल्ड एग्जामिनीज हो जाएंगे 100 - 65, दैट विल बी इक्वल टू 35%। और ऑलरेडी दिया गया है कि जो टोटल फेल्ड एग्जामिनीज है दैट इज़ 420, तो इसका मतलब ये है कि 35% इज़ इक्वल टू 420। अब हम कंसिडर करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज है वो x के बराबर है। तो गिवन कंडीशन हमें क्या कहते हैं? गिवन कंडीशन हमें ये कहता है कि 35 ओवर 100, मतलब जो x है उसका अगर हम 35% ले टोटल का, तो वो 35% इज इक्वल टू 420। तो इस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी कि 35 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 420। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी 1200। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200, और ऑप्शन सी इज़ हियर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 9% ऑफ 64 प्लस 32% ऑफ 90 इज इक्वल टू व्हाट? मतलब ये है कि 64 का अगर 9% फाइंड किया जाए और 90 का 32% फाइंड किया जाए और इसको ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट नंबर क्या आएगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम 64 का 9% फाइंड करेंगे, दैट विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाई 64 और 100, और फिर 90 का 32% फाइंड करेंगे, दैट विल बी 32 मल्टीप्लाइड बाई 90 और 100। हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब गिवन क्वेश्चन के मुताबिक कि 9% ऑफ 64 को हमने ऐड करना है 32% ऑफ 90 के साथ, तो हम इक्वेशन 1 और 2 के ऐड करेंगे, दैट विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाई 64 और 100 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाई 90 और 100। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.56। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए 34.56। नेक्स्ट इज in 1 kg of sand and iron 20% is iron. How much sand should be added so that proportion of iron become 10%? अब हमारे पास 1 किलोग्राम सैंड और आयरन है, दोनों को कंबाइन करके 1 किलोग्राम है, उसमें 20% जो है ये आयरन है, इसका मतलब ये है कि 80% सैंड है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें हम कितना सैंड ऐड करें कि जो आयरन का परसेंटेज है 20% से लो हो के वो 10% बन जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि आयरन का मास कितना है। इसमें ऑलरेडी हमें दिया गया है कि आयरन 1 kg में है 20%, तो अगर 20% है 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का 20% हमारे पास आ जाएगा 200 ग्राम। इसका मतलब ये है कि आयरन इस मिक्सचर में 200 ग्राम है। नाउ लेट अस सपोज दैट x अमाउंट ऑफ सैंड इज एडेड। अब हम सपोज करते हैं कि इसमें जो सैंड का अमाउंट है वो x अमाउंट ऑफ सैंड जो है वो ऐड हो गया है, और प्रोपोर्शन हमारे पास बन जाएगा आयरन का 10%। तो वो हम किस तरह ऐड करेंगे? 200 ओवर 1000 प्लस x। तो हमारे पास आयरन की प्रोपोर्शन 20 से कम हो गया 10% का हो जाएगी, और 10% को हम लिख सकते हैं 10 ओवर 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 1000 ग्राम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए 1 किलोग्राम। नेक्स्ट इज the mean of 100 items was found to be 30. If at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11, the correct mean is। अब हमारे पास 100 आइटम्स है, उसका जब मीन फाइंड किया गया तो मीन इज़ 30, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि उसमें दो आइटम्स जो है वो 23 और 11 उसकी वैल्यूज़ थी, लेकिन वो 23 और 11 के बजाय उनकी वैल्यूज़ 32 और 12 ली गई है। तो अब हमने करेक्ट मीन फाइंड करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करता है। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डेटा को। गिवन डेटा में 100 आइटम्स है और उसका मीन है 30। फिर जो रॉन्गली टेकन आइटम्स है उसमें वो 32 और 12 है, और जो करेक्ट आइटम्स है दैट शुड 23 एंड 11। अब टोटल आइटम्स हम फाइंड करते हैं। अगर मीन 30 है
और टोटल 100 आइटम्स है, तो हमारे पास टोटल आइटम्स या टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट शुड बी 100 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 3000। अब जो रॉन्गली टेकन आइटम्स है उसका सम हम फाइंड करेंगे, दैट इज़ 44, और सम ऑफ करेक्ट आइटम जो कि करेक्ट होने चाहिए, दैट इज़ 23 प्लस 11 इज इक्वल टू 34। नाउ टू फाइंड द करेक्ट सम ऑफ टोटल आइटम्स, उसके लिए हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट सम ऑफ रॉन्गली टेकन आइटम्स वाइल एड करेक्ट आइटम विद टोटल आइटम्स। हम टोटल आइटम से क्या करेंगे कि जो रॉन्गली टेकन आइटम्स है, जो हमने गलत लिए थे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी जगह हम ऐड करेंगे जो कि करेक्ट आइटम्स है। तो 3000 हमारे पास टोटल है, उससे हम रॉन्ग सब्ट्रैक्ट करेंगे, रॉन्ग वैल्यू इज़ 44 और करेक्ट वैल्यू इज़ 34, तो हमारे पास हो जाएगा 2990। अब करेक्ट मीन हम किस तरह फाइंड करेंगे, मीन के लिए फार्मूला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हो जाएंगे 2990 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इवेंट्स। अब नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास इधर यहाँ पे है 100, तो जब हम ये डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29.9। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी 29.9। नेक्स्ट इज इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 45, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ दीज नंबर्स। 6 नंबर्स है, उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड किया गया है, दैट इज़ 45। हमसे अब ये पूछा गया है कि अब ये 6 नंबर्स है, इनको अगर हम जमा करें तो इनका सम क्या बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा को देखते हैं। गिवन डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 6 है और मीन जो है अरिथमेटिक मीन जो है इन ऑब्जर्वेशन का दैट इज़ 45। अब टोटल सम जो है वो हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम मीन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम इज्यूम करते हैं x, तो और मीन हमें दिया गया है 45, सो 45 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 6। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 270। सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ दीज नंबर्स बन जाते हैं 270। नेक्स्ट इज इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज़ इज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब 52 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें जो लड़कों की तादाद है वो लड़कियों से 2 कम है। मतलब अगर लड़कियां 27 है तो जो लड़के हैं वो 25 होंगे। अब एवरेज वेट जो है बॉयज़ का वो 62 kg है। एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज 62 kg वाइल एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज़ 40 kg। लेकिन अगर सारे स्टूडेंट्स का एवरेज वेट फाइंड किया जाए तो दैट विल बी 40 kg। हमने फाइंड किया करना है कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, तो इनमें जो लड़कियां हैं उनकी एवरेज वेट क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर फाइंड करते हैं कि गर्ल्स कितने हैं और बॉयज़ कितने हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, क्योंकि हमें दिया गया है कि बॉयज़ की तादाद जो है वो गर्ल्स से 2 कम है। यहाँ पर मैंने गलती से नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिखा है, इसको असल में ये है नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है कि जो दोनों गर्ल्स और बॉयज़ की तादाद है दैट इज़ 52, तो इट मीन्स x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 52। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 27। इसका मतलब ये है कि जो गर्ल्स है हमारे पास दैट इज़ 27। तो अगर गर्ल्स 27 है और टोटल हमारे पास 52 है तो बॉयज़ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे 25। अब हम सपोज करते हैं कि द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज़ y। जब एवरेज वेट को हमने y कंसिडर किया तो मीन का एक फार्मूला है, हम फिर से वही मीन का फार्मूला इधर यूज़ करेंगे कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन हमारे पास क्या है, जो मीन वेट है सबका दैट इज़ 40। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास लड़कियों का जो वेट है और लड़कों का वेट है वो देखते हैं। तो लड़कों का वेट चूँकि ऑलरेडी दिया गया है हमें, तो और लड़कों की तादाद भी दिया गया है कि लड़कों की तादाद है 25, क्योंकि हमने फाइंड किया और उनका वेट दिया गया है 42। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 42 हो जाएगा। और जो लड़कियों का वेट है वो हमने फाइंड करना है, वो उसको हमने y के बराबर समझा है और उसके जो लड़कियों की तादाद है दैट इज़ 27। सो 27 मल्टीप्लाइड बाय y और डिवाइड हो जाएंगे 52, क्योंकि टोटल नंबर जो है स्टूडेंट्स के दैट इज़ 52। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 38.14 kg।
So the correct option here is option A, 38 kg. Next is the average of 7 consecutive numbers is 20. The largest of these numbers is, अब 7 consecutive numbers है, जब उसका एवरेज निकाला जाता है तो that is 20. तो हमने फाइंड करना है कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. सोल्यूशन में हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला नंबर है दैट इज़ x. तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर्स है कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट विल बी x+1, x+2, x+3 अप टू x+6. अब गिवन एवरेज हमारे पास 20 है, तो वही मीन या एवरेज का हम फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स है जो कि हमने एज्यूम किया है, वो सारे ऐड करेंगे और वो कितने हैं 7 है तो 7 पे डिवाइड करेंगे, मीन ऑलरेडी दिया गया है दैट इज़ 20. तो x हमारे पास हो जाएगा 17. अब जो इसमें लार्जेस्ट कंसेक्यूटिव नंबर है वो हमने कंसिडर किया हुआ है x+6. तो x हमारे पास 17 है तो दैट विल बी 17 + 6, तो हमारे पास हो जाएगा 23. So the correct option here is option B, 23. Next is, what is the greatest possible length of a scale that can be used to measure exactly the lengths 3 meter, 5 meter 10 centimeter and 12 meter 90 centimeter. हमारे पास अब हमने लेंग्स मेजर करने, वो ऑलरेडी जो लेंग्स दिए गए हैं कि हमारे पास ग्रेटर पॉसिबल लेंथ ऑफ स्केल कितना होना चाहिए कि वो ये जो लेंग्स दिए गए हैं इन लेंग्स को करेक्टली मेजर करे. तो चलिए इसको सॉल्व करते. अच्छा, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो लेंग्स दिए गए हैं उन लेंग्स को हम सेम यूनिट में चेंज करेंगे. तो सेम यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर का हो जाएगा. तो पहले 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें दैट इज़ 300 सेंटीमीटर. जो दूसरा लेंथ है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, उसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करें दैट इज़ 510 सेंटीमीटर. और जो तीसरा लेंथ है दैट इज़ 12 मीटर 90 सेंटीमीटर. तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें दैट इज़ 1290 सेंटीमीटर. अब इसका हम फाइंड करेंगे HCF और LCM वाले मेथड से फाइंड करेंगे. तो HCF हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 × 5 दैट इज़ 30. तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, 30 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज, what is the least number to be added to 631 to make it a perfect square? 631 के साथ सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐड किया जाए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं 631 के. तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 को अगर हम देखें तो 625 आता है. 631 के बहुत करीब है, लेकिन मसला ये है कि 631 से छोटा है. हमने बड़ी फिगर फाइंड करनी है 631 से एबव वाली. तो दैट इज़ 26 मल्टीप्लाइड बाय 26. गलती से मैंने 31 मल्टीप्लाइड बाय 31 लिखा है, इट इज़ एक्चुअली 26 मल्टीप्लाइड बाय 26. तो 26 का अगर हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 676. ये एक दूसरा जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है. तो अब 631 के साथ हमने ये देखना है कि किस चीज़ को या किस नंबर को ऐड करें कि उससे 676 बन जाए, क्योंकि 676 इसका नियरेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर है. तो हम क्या करेंगे कि 676 से 631 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बिकम 45. तो इसका मतलब ये है कि 45 इज़ द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 631 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन सी, 45. नेक्स्ट इज द एज ऑफ पाकिस्तान इज़. पाकिस्तान चूँकि 1947 से बना था, तो उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान की एज बन चुकी है 76. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, if a multiplied by b is equal to 2a plus 3b, then the value of 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 4 is. अब एक कंडीशन दिया गया है कि a multiplied by b अगर 2a plus 3b की बराबर है तो 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 4 की वैल्यू क्या बनेगी. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. गिवन कंडीशन हमारे पास है a multiplied by b is equal to 2a plus 3b. तो इसका मतलब ये है कि 2 multiplied by 3 हमारे पास हो जाएगी 2 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 3. So that will be 2 multiplied by 3 is equal to 13. और इसी तरह से 3 multiplied by 4 हमारे पास हो जाएगा 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 4. So that will be 18. तो इस तरह इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, हमारे पास रिजल्टेंट जो नंबर आएगा that will be 31. So the correct option here is option C, 31. Next is, Pakistan's Prime Minister Imran Khan reached in Moscow for a 2-day official visit of Russia on
So the correct option here is option A, February 23, 2022. Next is, in August 2021, China inaugurated a new trade route via ship, road and rail through. The correct option is option B, Myanmar. Next is, Tokyo Olympics held in. The correct option is July 23, 2021. Next is, the European Union is said to become the largest bloc in the world to completely ban the sale of conventional combustion engine cars by. The correct option is option A, 2035. Next is, what is the name of telescope which is sent to space on December 24, 2021? The correct option is option C, James Webb Space Telescope. Next is, Winter Olympics 2022 was opened on. The correct option is option A, February 04. Next is, when did Israel open embassy in the United Arab Emirates? मुत्तहिदा अरब इमारात में इसराइल ने कब एम्बेसी खोली थी? The correct option is January 2021, option B. Next is, current UN Secretary General re-elected for second term in June 2021. How long is the term? So the answer here is 5 years. Next is, in March 2021, a ship blocked the Suez Canal for 6 days. What was name of the ship? The correct option is option A, Ever Given. Next is, in January 2021, Samia Suluhu Hassan became the first woman president of which country? The correct option here is option C, Tanzania. Next is, Brexit came into force after a year of wrangling on. The correct option here is option A, January 1, 2020. Next is, the 2021 Nobel Prize for Literature was awarded to novelist Abdul Razak Gurnah of. The correct option here is option C, Tanzania. Next is, who claims the responsibility of attack near Abu Dhabi's main airport on January 17, 2022? The correct option here is option C, Yemen's Houthis. Next is, in September 2021, a trilateral security partnership was announced between the USA, UK and Australia to provide Australia with nuclear-powered submarines in the Asia Pacific region, which is styled as. So the correct option here is option B, AUKUS. Next is, which country's president is the current chairman of African Union? So the correct option here is option C, Senegal, but it was back in 2022. In 2023, Azali Assoumani of Comoros is elected as the current chairman of African Union. Next is, who is the first woman prime minister of Tunis? So the correct option here is option C, Najila Bodin. Next is, famous playback singer Lata Mangeshkar died in Mumbai at the age of 92 on. So the answer here is option C, February 6, 2022. Next is, Russia vetoed in December 2021 a first of its kind UN Security Council resolution casting climate change as threat to international. So the correct option here is option A, peace and stability. Next is, in September 2020, NASA collected first ever piece of rock from Mars by car-sized space probe named. So the answer is option B, Perseverance. Next is, which team is the winner of the 7th edition of Pakistan Super League PSL 7? The answer is option B, Lahore Qalandars. Next is, father of Pakistan's nuclear bomb named as. The correct option is option B, Abdul Qadir Khan. Next is, which country officially accepted Pakistan first? The correct option here is option A, Iran. Next is, Pakistan got its first constitution is. The correct option is option C, 1956. Next is, when Constituent Assembly of Pakistan adopted objective resolution. So the correct option here is option A, 1949. Next is, who was Muhammad Ali Bogra? So the correct option here is option C, Prime Minister. Next is, what should be the minimum age of President of Pakistan? The correct option here is
Option A 45 years. Next is Pakistan's official language in 1956 constitution was. The answer is option C both A and B. Next is who abrogated the 1956 constitution? The answer is option A Iskandar Mirza. Next is 1962 constitution gave unlimited authority to. The answer here is option A President. Next is Zulfikar Ali Bhutto gave 1973 constitution on. The answer is 14 August 1973. Option B. Next is which surah of Quran has Bismillah twice? The correct option here is option B Al-Naml. Next is in Surah Kaf which animal is mentioned with Ashab-e Kaf? The answer is option C dog. Next is the Battle of Yarmouk was fought between Muslims and Daesh. The correct option here is option B Romans. At that time it was the Byzantine Empire. Next is Baitul Mamur is at Daesh heaven. The correct option here is option C 7th. Next is Abul Hikam is the title of. The correct option here is option A Abu Jahl. Next is King of Daesh tore away the letter of Prophet sallallahu alaihi wasallam. The answer here is ईरान. उस टाइम उसको कोसरोज या खसरो ऑफ पर्शिया कहा जाता था. नेक्स्ट इज हुरैरा मीन्स केट. नेक्स्ट इज daughter of Hazrat Umar Raziallahu Anhu who married to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was. The answer is Hazrat Hafsa Raziallahu Anha. Next is subject of the Holy Quran is. The answer is human. Next is the funeral prayer Namazi Janaza is. The answer is Farzi Kifaya. Next is which federal ministry controls the airport security force? The answer is Defense Ministry. Next is Airport Security Force headquarters is located in. The answer is Islamabad. Next is CCTV cameras are used. The answer is as a security tool. Next is whoever knowingly gives or causes to be given a false alarm of fire to the fire brigade can be punished with. The answer is any or both of the above. Option C. Next is according to ASF Act 1975, Director General has the power to make regulations regarding ASF. So the answer is option A true. Next is Airport Security Force ASF is in charge of security in case of any act of unlawful interference or threats of such interference to. The answer is all of these, meaning airports, aerodromes and civil aviation installation. Next is the federal government can delegate all his powers under ASF Act 1975 to. The answer is Director General ASF. Next is the federal government can delegate all his powers under ASF Act 1975 to Director ASF except. अब डायरेक्टर ASF के साथ जो सेक्शन 11 वाले पावर्स है ये डायरेक्टर ASF के साथ नहीं है, तो आप इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर? द आंसर इज all of these, meaning radio stations, power plants and water canals. Next is if an officer detects contraband item on a person checked by him, he is to notify. The option here is option B custom staff. Next is an ASF member shall prevent all persons and vehicles from access to the air side or other areas important to the security of aerodromes or airports. So the correct option here is option B false, only unauthorized persons. Next is terrorist acts carried out by governments in pursuit of political objectives, often as part of their foreign policy, is known as. The correct option here is option B state terrorism. Next is no officer or member shall resign from the force without giving in writing a notice of. The correct option here is option B 2 months. Next is a service of aircraft for any purpose of civil aviation, whether aerial work, public transport or otherwise means. The correct option here is option B air service. Next is which one of the following is not part of physical security? The correct option here is option C encryption. Next is
officers and members of ASF are subjected to? The correct option here is option C, Pakistan Army Act 1952. Next is, if the district police officer considers any order of the Zilla Nazim unlawful or malefied, he may recourse to. The correct option here is option A, District Police Safety and Police Complaints Commission. Next is, the National Public Safety Commission shall oversee the functioning of. The correct option here is option A, Federal Investigation Agency. Next is, temporary permit functionary pass is issued for maximum period of. The correct option here is option B, 3 months. The last one is, who is junior person in the same grade appointed on the same date on? The correct option here is option B, regular basis. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed and good luck for your paper.